ایران کے اسرائیل پر جوابی حملوں کا آغاز، اسرائیل پر 150 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے، ایرانی شہر شراز سے میزائل فائر کیے گئے، مشرقی شام اور لبنان بھی زوردار دھماکے، تل ابیب میں سائرن بج اٹھے، شہریوں کی بڑی تعداد بنکروں میں چلی گئی، 2 میزائل تل ابیب میں جا گرے، اسرائیل نے ایران کے حملوں کی تصدیق کر دی، اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے داغے گئے کئی میزائل تل ابیب میں گرے۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ، جوہری تنصیبات، فوجی اہداف اور فوجی قیادت کے رہائش گاہوں سمیت 8 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل سلامی، ایئر اور اسپیس فورس کے سربراہ امیر علی حاجی زادہ سمیت اعلیٰ قیادت شہید، ڈاکٹر فریدون عباسی اور ڈاکٹر تہرانچی سمیت 6 ایٹمی سائنسدانوں کی شہادت۔ اسرائیل کا تبریز کے ریڈار سینٹر پر بھی حملہ، شراز اور ہمدان میں بھی حملوں کی تصدیق۔ ایران کا اسرائیل پر ڈرون سے حملہ، اسرائیل پر 100 ڈرون سے داغے، ایران کی افواج نے اسرائیل کے 2 جنگی جہاز مار گرائے، دونوں جنگی جہازوں کو ایران کے دفاعی سسٹم نے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 104 افراد شہید، 376 زخمی۔ ایران اور اسرائیل کا ایک دوسرے پر مزید حملوں کا اعلان، رات گئے تہران پر شدید حملے، ایک عمارت میں آگ لگ گئی، ایران نے بھی اسرائیل پر میزائل حملوں کی چوتھی لہر جاری کر دی، تل ابیب میں ہر سو تباہی کے مناظر، سڑکوں پر لاشیں دیکھی گئی، کم از کم 9 عمارتیں تباہ، سینکڑوں اپارٹمنٹ برباد۔ نیو یارک ٹائم نے اسرائیل کے 3 اسپتالوں کا ڈیٹا شیئر کر دیا، کم از کم 40 اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو بے لگام نہ چھوڑے، اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں کہ حق کے دفاع کے آڑ پر اسرائیلی عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی، اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل کے دعوے ہوا ہو گئے، امریکی اخبار نے پول کھول دی، ایران پر اسرائیلی حملوں میں ایران کا نیوکلیر پروگرام محفوظ رہا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق حملے کے پہلے مرحلے میں ایران کے بم بنائے جانے کے قابل جوہری ایندھن کے ممکنہ ذخیرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران نے امریکی شہری اڈوں اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی مندوب نے بیان میں کہا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے، ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، اس کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ ایران کا اسرائیل کو خیبر سے مارنے کا اعلان، اب اسرائیل کے ساتھ وہ کریں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایرانی IRGC کی جانب سے پیغام جاری، خیبر میزائل جلد لانچ ہوں گے، ایرانی خیبر کی رینج 2000 کلومیٹر اور 1500 کلومیٹر، وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت موجود۔ ایران پر حملے میں 200 جنگی طیارے استعمال ہوئے، حملے سے پہلے ایران کے فضائی دفاعی نظام کو غیر مؤثر کر دیا گیا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے ایران کے اندر خفیہ بیس بنا کر ڈرون سے ایرانی میزائل سسٹمز کو گائیڈڈ ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، ایران میں آپریشنز کے ویڈیوز بھی جاری کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق خفیہ آپریشن کے لیے ہتھیاروں سے لیس گاڑیوں اور ایجنٹوں کو ایران اسمگل کیا گیا تھا۔ ایران نے اعلیٰ عسکری قیادت کی شہادت کے بعد نئی قیادت میدان میں اتار دی، جنرل باقری کی جگہ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی آرمی چیف مقرر، بریگیڈیئر جنرل محمد فاخر پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی کے جانشین ہوں گے، خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے سینئر کمانڈر غلام علی رشید کی جگہ بریگیڈیئر جنرل علی شادمانی کو تعینات کیا گیا۔ صہیونی ریاست کو اپنے جرائم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل کو واضح کر دیا، قوم سے خطاب میں بولے اسرائیل سزا سے بچ نہیں سکے گا، ایران کی مسلح افواج اسرائیل کو مفلوج کر کے دم لے گی۔ ایرانی صدر کا اسرائیلی حملوں کا سخت جواب دینے کا اعلان، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا دشمن اپنے احمقانہ اقدام پر پچھتائے گا، واضح کیا
हमले ने दुनिया पर साबित कर दिया सयूनी रियासत जारियत पसंद है। ईरान के अवाम से इत्तेहाद, यकजहती और हमदर्दी को बरकरार रखने की अपील भी की। ईरान के फिजाई हमलों पर जवाबी कार्रवाई की धमकी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू मुल्क से फरार। नेतन्याहू के सरकारी तैयारे विंग ऑफ ज़ाइन ने बेन गुरियन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसराइल के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इसराइली शहरियों को बम शेल्टर्स और बंकर्स के करीब रहने का मशवरा। नेतन्याहू का जंग तवील होने का इंदिया। कहा इसराइल की तारीख के फैसलाकुन मोड़ पर है। ईरान ने मुआहदा ना किया तो सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की खुली धमकी। कहा तेहरान को अमरीका के साथ फौरी तौर पर मुआहदा कर लेना चाहिए। बसूरत दीगर हालात मजीद खतरनाक रुख इख्तियार कर सकते हैं। अमरीका दुनिया के सबसे जदीद और तबाहकुन हथियार बनाता है। इसराइल के पास ये हथियार मौजूद हैं और वो इनका इस्तेमाल करना भी जानता है। इसराइली जारियत के बाद ईरान अमरीका के बिलवास्ता होने वाले जौहरी मुज़ाकरात मंसूख। ईरान मीडिया के मुताबिक ईरान ने इतवार के रोज ओमानी सालिसी में होने वाले जौहरी मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। ओमान ने इसराइली हमलों को लापरवाही करार देते हुए कहा कि इन हमलों से अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गए हैं। ट्रंप और नेतन्याहू का शैतानी इत्तेहाद नाकाम नामुराद होगा। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा सादिक रफीक का कहना है कि ईरान गजा है, न मिस्र, उर्दन है, न ही लबनान। ईरानी कौम यमन और हमास की मानंद डटी रहेगी। जंग जू आगे बढ़ेगी। ईरान के इलाकाई और आलमी हमायत बढ़ती चली जाएगी। ईरान जैसे बड़े मुल्क पर ग्राउंड अटैक करना या उसे मुकम्मल शिकस्त देना नामुमकिन होगा। अमरीका इस जंग में बराह रास्त कूदा तो जंग का नतीजा किसी और के बतौर सुपर पावर जहूर निकलेगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। का इसराइली हमले ईरान के खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म का इंसानी जानों के ज़िया पर ईरानी अवाम से इज़हार यकजहती। कहा कि ईरान पर हमला गैर मुस्तहकम खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम से दोचार कर सकता है। कौमी असम्बली और सेनेट में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल ने UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की। आलमी बरादरी का फर्ज है कि इसराइली हमले का नोटिस लें। नायब वज़ीर आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान पर हमला आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ इज़हार यकजहती करता है। ईरान पर इसराइली हमले के बाद आलमी बरादरी में शदीद तशवीश की लहर। सऊदी अरब ने मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली और मईशत को लाख खतरात पर तशवीश का इजहार किया। तुर्किया का जंगबंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम फरीक़ैन से ज़ब्त और फौरी मुज़ाकरात की अपील। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सूरत हाल को खतरनाक करार देकर फरीक़ैन से तसादुम से गुरेज़ की दरख्वास्त की। बरतानिया की भी कशीदगी कम करने की दरख्वास्त। जापान ने शहरियों को हिफाजत अव्वलीन तरजीह देते हुए सिफारती हल पर जोर दिया। इसराइली जारियत के खिलाफ ईरान भर में गम और गुस्सा। तेहरान और क़ुम में लाखों शहरी सड़कों पर आ गए। मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हज़ारों शहरियों का एहतजाज। इसराइल के खिलाफ सख्त रद्द अमल का मुतालबा। क़ुम में वाक़ मस्जिद जमकरान पर इंतकाम का सुर्ख परचम लहरा दिया गया। But these are joint challenges that we should have been meeting together. And then our options are, we're being forced towards very limited options. India said no to an impartial investigation into terrorism. And we're not talking to each other. So if they continue on the threats that they've made, and just the mere threat is a violation of the UN Charter to cut off the water supply. पानी जैसे हसास वसाइल का बतौर हथियार इस्तेमाल खतरनाक रुझान। पाकिस्तान माहौलियाती बहरान का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं यूरोपीय वज़ारत ख़ारजा हुक्काम से मुलाकात में खित्ते के अमन पर जोर दिया। भारत की जारहाना पॉलिसीज पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो की ईरान पर इसराइली हमले की मसम्मत। आलमी बिरादरी से जंग फौरी रुकवाने का मुतालबा। Rise before this August House to present the annual budget of ₹3,450,000,000
2025-26 for the province of Sindh. So the government's top priorities, I will start with the health department with a motto of health for all. सिंध का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला सिंध ने बजट पेश किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन के लिए 12% एडहॉक रिलीफ अलाउंस मिलेगा। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा। मजदूर मुलाजमीन के लिए कन्वेंस अलाउंस में इजाफा। वज़ीर आला सिंध का तालीम और सेहत के बजट में नुमाया इजाफे का ऐलान। तालीम के बजट कुल अखराजात का 25.3%। प्राइमरी तालीम के लिए 156.2 अरब और सेकेंडरी तालीम के लिए 77 अरब मुख्तस किए गए। सेहत के शोबे के लिए 326.5 अरब रुपए रखे गए। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के लिए 19 अरब और लाड़काना में नए अस्पताल के लिए 10 अरब शामिल हैं। $1 billion already dispersed as compensation. Police station empowerment infrastructure, 31 police stations launched, 3.7 billion devolved directly to police stations. SHOs and sub-investigation officers designated as drawing and disbursement officers for localized decision making. वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा। ऐवान मछली बाजार में तब्दील। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि ये बजट सिंध का नहीं बडेरा शाही का बजट है। सिर्फ जागीरदारों बडेरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। बजट में शहरी सिंध को जानबूझ कर नज़रअंदाज किया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, महंगाई के दौर में जितना रिलीफ दे सकते थे दिया। एमकेएम पाकिस्तान में इख्तिलाफात। कारकुनान की राब्ता कमेटी ऑफिस के बाहर नारेबाजी। एक ग्रुप के मुस्तफा कमाल और दूसरे ग्रुप के खालिद मकबूल सिद्दीकी के हक में नारे। बहादुराबाद मरकज पर पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। लाहौर में तेज हवाएं चल पड़ी। हब्स में कमी। गर्मी का जोर टूट गया। आंधी और तेज हवाओं से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। महकमे मौसमियात की बालाई सिंध के तमाम अज़ला में आंधी और बारिश की पेश गोई। 16 जून तक पंजाब, केपी, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सनसनीखेज मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 207 रन बनाकर आउट होगी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क 58 रन बनाकर नॉट आउट। ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए प्रोटीज को 282 रन का हदफ। साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए। जीत के लिए मजीद 69 रन दरकार।